Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to solve one question which is related to the job costing. So it is very important to understand the basic concept of the job costing. Otherwise, you will get confused what the demand of the question is. So it is advisable to have a basic concept about the job costing. So we will discuss this session in all the language, in both the language of Hindi and English, and it is advisable for you to have a good command on the theory portion, because sometimes you people think that no, just doing a n number of numerical is enough, but for going through solving these kind of numerical, it is very important to have a command over the theory. And once you have a good understanding of the theory, even in the late term, even if you have a good understanding of the theory, the numerical will become a little bit easier as compared to the non understanding the theory. तो आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं जॉब कॉस्टिंग का एक न्यूमेरिकल, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है और हमारी ये उम्मीद है कि आपने जॉब कॉस्टिंग के ऊपर एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक नॉलेज गेन कर ली होगी। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर लो और कई सारे न्यूमेरिकल करते चले जाओ और उसी रेस में लग जाते हैं कि कौन कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है। ये नहीं करना है आपको, कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी है। बेसिक थ्योरी कमांड्स जरूर करना है। उससे कई बार क्या होता है कि आपके न्यूमेरिकल जो है कई हद तक ईजी हो जाते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक बेस क्लियर होता है। तो बेस बनाना जरूरी है, तो आप थ्योरीज को जरूर कवर अप कर लेंगे। आज के सेशन में हम सिर्फ एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वो भी जॉब कॉस्टिंग के ऊपर। हम और भी कई सारे सब्जेक्ट्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल करते रहेंगे, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन पे अपने इनपुट्स देंगे ताकि हम उसे एनालाइज कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद द जॉब कॉस्टिंग. So here the question and the demand of the question is, the following information is available for job number 623, which is being processed at the request of a customer. So I hope you were well aware that job costing is these cost sheet is prepared as per the requirement of the customer. Means there is no fixed rule of thumb, like if you want any kind of modifications for that particular job, so in that way your job will be created. Suppose I want something other, something different and something new. So job costing is all about something new. Every time you get something new, there is no from department to department rule of thumb. It keep on changing as per the requirement of customers. So here is we called as a job number 623, and the information given to us that it has divided into a three department, A, B and C respectively. The material consumed, the amount has been given rupees 4,000 for A, 1,000 for B and 1,500 for C. We have direct labor. Wage rate per hour of the labor is rupees 3 per hour for A, 4 per hour for B and 5 per hour for C. We have direct labor hours, 300 hours for A, 200 hours for B and 400 hours for C. In accordance with the company policy, the following are chargeable to the jobs. Fixed production overhead, we have given just here the fixed production overhead is rupees 5 per. There is a catch. Fixed production overhead is on direct labor hours, and we have fixed administration overhead 80% of the work cost. Profit markup is 20% margin on selling price. You are required to calculate the total cost and selling price of that particular job. So if you are a new learner, you can try to understand how we can solve the question on job costing, and if you are an experienced learner, you can just take it as a challenge and solve before me and get it cross-checked immediately. So if you are a new learner or an experienced learner, you can take benefit from this numerical. So I hope everybody understood the demand of the question and given information of the question. ओके, सो लेट्स कंक्लूड इन द अदर लैंग्वेज. ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन दी हुई एक जॉब है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, जॉब का नंबर दे दिया गया है आपको ऐसे ही समझाने के लिए कि 623 नंबर है जॉब का, ठीक है, और कस्टमर की जो रिक्वेस्ट है उस पर बन रहा है ये जॉब, ठीक है। तीन डिपार्टमेंट हैं ए बी सी, तीनों के डिपार्टमेंट की डिटेल दी गई है, मटेरियल की वैल्यू दे दी गई है, डायरेक्ट लेबर का रेट दिया है, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दिए गए हैं, ठीक है। और कंपनी की एक पॉलिसी है, एक सिद्धांत है कंपनी का कि वो जो जॉब में क्या करेगा, फिक्स प्रोडक्शन है, ओवरहेड उसने फिक्स रखा है 5 रुपए के हिसाब से, लेकिन ये जो 5 रुपए है ना, ये डायरेक्ट लेबर आवर के ऊपर है। दूसरा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑफिस के जो खर्चे हैं वो 80% वर्क कॉस्ट के होंगे, और प्रॉफिट मार्कअप दे दिया 20%, लेकिन किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस या सेलिंग कॉस्ट इस जॉब की। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. So you are required to prepare the job cost sheet. Okay, so I'm doing from the base. Okay,
Okay, so you can write anything. There is a no rule of thumb in this. So it will be the particulars. We have ABC. Okay, ABC, it can be anything. And if in the question you have given something difficult name of the department, you can write a note that this name of department I am considering as A, and that note of department I am considering as B. You can do that, but by giving a note. Okay, I hope this is clear. Okay, so let's see the information of the direct material consumed straight away given as 4,000, 1,000 and 1,500. Direct material, 4,000, 1,000 and 1,500. 6,500 is the total of the direct material. 6,500, correct? Now direct labor. I hope this direct material, I'll conclude in other language also, not to worry. So we have wage rate of rupees 3 and direct labor hours is rupees 300. For A, we will get 3 into 300 because wage rate per hour into total labor hour for that particular unit for department. So 300 into 3, we got 900. 200 into 4, we had 800, and 400 into 5, we will get 2000 straight away. So 300 into 3, 300 into 3 will get 900. Okay, 400 into 2, 800, 800, and then we have 5 into 400. So 400 into 5, that is 2000, 2800, 3700 is the net total we will get as the direct labor hour. I hope it's clear. So we have next production overhead. Production overhead, okay, on total hours is, we have production overhead rupees 5 per direct labor hour. So how many hours we have? 400 plus 200, 600 plus 300, 900. So 900 hours we have, and the cost is rupees 5 per hour. Okay, it will be 4,500 direct. Kindly do the total, please. Okay, so it will be 14,700. So this will be your work cost. So we got the work cost as 14,700. Okay, now add your office expense, administration cost. So what will be the administration cost? 80% of the work cost. So 80% of 14,700, it will be 11,760. So we will get 26,460 administration overhead. Okay, and the last thing we have markup, which is given as 20% on selling price, but we got the total cost. What we got? Cost of production or total cost? Cost of production, or we can say total cost is 26,460. Now add profit, because why we add profit? Because on cost, when you are going to sell something, you add your profit margin on that cost, so that you decide, okay, I'll sell on this value, because it will incur my cost, it will include all my cost, and it's also include my profit margin. So obviously you add profit to your cost, but we have the information that profit is 25% margin on selling price. So now we convert it into the cost price, because we are calculating on the cost. So if it's a 25% on 20% on selling price, 20% on sale price. So say sale price is 100 minus profit.
Why minus? Because sale price is inclusive of profit. We have cost. So please calculate this. You will get 25% on cost. 25% of 26,460. Please calculate this. We will got 6615, and then we got 33,075 as a selling price. Okay, so let's conclude in the other language and I'll explain a little bit more. Okay, तो हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं जॉब को, जो जॉब नंबर था 623, उसमें कस्टमर के हमारे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट थी। तो देखिए जॉब में ना हर बार आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नया मिलेगा। तो कभी भी जॉब कॉस्टिंग को आप रूल ऑफ थंब मान के नहीं चलेंगे, बिकॉज कस्टमर की जब सेपरेट रिक्वायरमेंट है तो इसमें कॉस्टिंग की लगभग सारी नॉलेज लग जाती है, काफी बेसिक नॉलेज आपकी लग जाती है। तो आपको वरीड नहीं होना है, हर आपको जॉब कॉस्टिंग में कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो ये जो है हमें आज जो बनाना है वो स्टेटमेंट बनाना है सेशन में कि जॉब कॉस्ट की और सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, राइट। तो सबसे पहले एक कॉस्ट शीट के फॉर्म में बनता है। तो डायरेक्ट मटेरियल हमने सबसे पहले ले लिया। वैल्यू गिवन है तीनों डिपार्टमेंट्स की, ए बी सी की, 4000, 1000 और 1500। डायरेक्ट हमने पुट कर दिया 4000, 1000, 1500 इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, और टोटल वैल्यू आ जाती है हमारी 6500। बिल्कुल क्लियर, कुछ वर्किंग नहीं है। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं डायरेक्ट मटेरियल से डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे। लेबर का रेट गिवन है हमें 3 रुपए के हिसाब से पर आवर, और 300 रुपए घंटे हैं एक एक केस में। तो 300 इंटू 3, 900। वर्किंग आपको दिखानी, अगर आप ऐसे शॉर्ट नोट दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपने सेपरेटली नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी फिगर को कैसे यूज किया आपके क्वेश्चन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका बी डिपार्टमेंट का गिवन है 4 रुपए वेज रेट पर आवर और 200 घंटे के हिसाब से। तो 200 इंटू 4, 800 आपकी अमाउंट हो गई। सी केस में है आपको 400 घंटे इंटू 5 वेज रेट, तो 400 इंटू 5 आपका 2000 वैल्यू हो गई। तो डायरेक्ट लेबर को हमने टोटल कर लिया तो हमारी वैल्यू आ जाती है 3700। क्लियर। अब प्रोडक्शन ओवरहेड यानी ये टोटल खर्चा निकलेगा। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड गिवन है आपका 5 रुपए के हिसाब से इंटू डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर गिवन, तो डायरेक्ट लेबर आवर हमारी कितनी हो रही थी, 400 प्लस 200 प्लस 300 यानी 900 घंटे हो रहे थे, और 5 रुपए रेट गिवन है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड का। तो टोटल आपका प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाता है 4500। क्लियर, 4500 आपका टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया। नेट टोटल करेंगे तो आपकी वर्क कॉस्ट निकल के आ जाती है 14700 रुपए की। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड गिवन है, जो कि दिया गया है 80% ऑफ वर्क कॉस्ट। जॉब कॉस्टिंग में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन जो दे रहा है उसको बस मानना है सही है और उसी हिसाब से करते चले जाना है। तो 80% जो आपकी वर्क कॉस्ट आई है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। तो आपने 80% ऑन 14700 कर दिए वर्क कॉस्ट के ऊपर, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ जाती है 11,760 यानी 11,760 रुपए आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है। अब आप सारी कॉस्ट को टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितना कॉस्ट यानी कितना खर्चा लग रहा है। टोटल आ जाता है 26,460। क्लियर। अब क्वेश्चन में गिवन है कि भाई प्रॉफिट का जो मार्जिन है ना वो 20% दिया है, लेकिन सेलिंग प्राइस पे दिया है। आपने कैलकुलेट क्या किया है, अभी कॉस्ट पे दिया है, तो ऑब्वियसली दोनों चीज डिफरेंट हो गई। सेलिंग प्राइस जब हम सेल करते हैं ना, कोई दुकानदार बेचता है तो उस कॉस्ट में उसने जो मानी कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो उस प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा प्लस उसका खुद का मार्जिन जुड़ा हुआ, एक प्रॉफिट जुड़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं। तो अभी ये तो प्रॉफिट मार्जिन हमें गिवन था 20% सेल प्राइस पे, तो कॉस्ट पे कितना होगा, क्योंकि हमने वैल्यू जो निकाली है वो तो कॉस्ट निकाली है, तो ऑब्वियसली हमारी प्रॉफिट मार्जिन भी कॉस्ट की चाहिए। तो 20% हमारा सेलिंग प्राइस पे था, तो 25% हमारा रिवर्स कैलकुलेशन से कॉस्ट पे आ जाता है। आपको ये वर्किंग नोट दे दिया, आप एक बार इसको देख लेंगे, क्योंकि सेल प्राइस में कॉस्ट जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, सॉरी, उस प्रॉफिट को हमने निकाल के बाहर किया। तो कॉस्ट कितनी हो गई एग्जाम्पल के तौर में 80 रुपए। अब आपने प्रॉफिट किस पे निकालना है, कॉस्ट पे निकालना है। प्रॉफिट किस पे निकालना है, कॉस्ट पे। ट्वेंटी 25% आपका कॉस्ट पे आ जाएगा। क्लियर। ये वर्किंग नोट आप एग्जाम में जरूर देंगे। ये कैच है, इसमें कई बार सेलिंग प्राइस पे भी दिया रहता है प्रॉफिट, कई बार कॉस्ट पे भी दिया रहता है, आप उसके अकॉर्डिंगली उसे यूज करेंगे। तो प्रॉफिट हमने निकाल दिया 25% ऑफ आपका जो 26,460 आया था, तो प्रॉफिट आ जाता है 6615। तो आपका टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट
आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस 33,075, यानी आपके जो जॉब की कॉस्ट है वो है 26,460 और सेलिंग प्राइस निकल के आता है 33,075। सो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट जो है जॉब कॉस्टिंग का क्लियर हो। कुछ ज्यादा रूल ऑफ थंब है ही नहीं इसमें। हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छे स्ट्रैटेजिक वे में जो भी डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको बहुत ही पेशेंटली रीड करना है और उसे एग्जीक्यूट करना यानी लिखना है। जहां पॉसिबल हो सके आप ऐसे वर्किंग नोट भी दे सकते हैं, नहीं तो आपने सेपरेट वर्किंग नोट बनानी है, क्योंकि इससे एग्जामिनर के ऊपर काफी अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। तो आपने जहां जहां रिक्वायरमेंट है उसकी वर्किंग नोट्स जरूर पुट करनी है, ठीक है। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हम हर टॉपिक से रिलेटेड शेयर करेंगे। आपके कुछ इनपुट्स हैं तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, ठीक है। सो I hope you able to understand this question on the job costing. We'll cover more on these topics of numerical for commerce and accountancy. Do stay connected with us and do practice and take it as a challenges. And even if you are a beginner learner, you can learn through these practices. So keep revising your course, keep working hard, stay connected with us. And if you like, give like. If you don't like, share or input on the comment section. So see you in the next session. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.